भगवद गीता का अध्याय 13 श्लोक 21 से 34 तक। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जागुना कारण गुण संगोस्य सत्सद्यो न जन्मसु उपभ्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मे पुरुष पर यर एवं वेति पुरुष प्रकृतिं च गुणे से सर्वथा वर्तमानोऽपि न स ध्यानात्मनि पश्यन्ति कैचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवं जानन्त श्रुतोऽन्येभ्य उपास्ते तेपि चातित्रन्त्येव मृत्युं श्रुतिप्रयणा यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरंगमम् क्षेत्रे क्षेत्रज्ञस्य योगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति समः पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिंस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परागतिम् प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्ता स पश्यति यदा भूतपृथ्भावमैकस्थं न पश्यति तथैव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा अनादिवान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वत्र सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयतेकः कृत्स्नं लोकमिमर्वे क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और मंत्र ज्ञान शिक्षुषा भूत प्रकृतिमोषे च ये विदुर्याति ते परम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम भगवद गीता चैप्टर 13 verses from 21 to 34। Only the Purana in association with Prakriti experiences objects of the nature of the three gunas evolved from Prakriti, and it is attachment with these gunas that is responsible for the birth of the soul in good and evil wombs. The spirit dwelling in this body is really the same as the Supreme. He has been spoken of as the witness, the true guide, the sustainer of all, the experiencer, as the embodied soul, the overlord and the absolute as well. He who thus knows the Purana, spirit, and Prakriti, nature, together with the gunas even though performing his duties in every way, is not born again. Some by meditation behold the Supreme Spirit in the heart with the help of their refined and sharp intellect. Others realize it through the discipline of knowledge, and still others, through the discipline of action, i.e., Karma Yoga. Other dull-witted persons, however, not knowing thus, worship even as they have heard from others, i.e., the knowers of truth, and even those who are thus devoted to what they have heard, are able to cross the ocean of mundane existence in the shape of death. Arjuna, whatsoever being, the moving or unmoving, is born, know it is emanated through the union of kshetra, matter, and the kshetrajana, spirit. He alone truly sees, who sees the Supreme Lord as imperishable and abiding equally in all perishable beings, both animate and inanimate. For, by seeing the Supreme Lord equally present in all, he does not kill the self by himself, and thereby attains the supreme state. He who sees that all actions are performed in every way by nature, Prakriti, and the self as the non-doer, he alone verily sees. The moment man perceives the diversified existence of beings as rooted in the one Supreme Spirit, and the spreading forth of all beings from the same, that very moment he attains Brahma, who is truth, consciousness and bliss solidified. Arjuna, being without beginning and without attributes, this indestructible Supreme Spirit, though dwelling in the body, in fact does nothing, nor gets tainted. As the all-pervading ether is not contaminated by reason of its subtlety, though permeating the body, the self is not affected by the attributes of the body due to its attributeless character. Arjuna, as the one sun illumines this entire universe, so the one Atma, spirit, illumines the whole kshetra, field. Those who thus perceive with the eye of wisdom, the difference between the kshetra and kshetrajana, and the phenomenon of liberation from Prakriti with her evolutes, reach the Supreme Eternal Spirit. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 13th chapter entitled, The Yoga of Discrimination Between the Field and the Knower of the Field. प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मनबुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जान।
जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद योग शास्त्र के रूप में जाना जाने वाला शास्त्र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर का योग समाप्त होता है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।